वी आर अपग्रेडिंग आवर टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी बिकॉज हर रोज दुनिया हमें नया लेसन दे रही है, एवरी डे, politically, socially, psychosocially, emotionally, and most of all, scientifically, logically, sometimes illogically. दुनिया हमारे सामने अपना आप, कायनात अपना रूप हमारे सामने पूरी तरीके से आयां कर रही है। सबके सेंटर में आपने कुरान को रखना है, सबके सेंटर में we're going to set the stage for the Quran, we're going to open the Quran and see what's going on and see how do you fit in, what is the demand of Quran from you as a girl or a boy, what is the demand of Allah Azza wa Jalla from any human being right now in this 2026, coming up with 2036, coming up with 2046. You inshallah are going to outlive me or anyone who's alive right now of age higher than yours. So you are going to solve the problem of the future. Whoever has Islam as a purpose और उसके ज़हन में कोई पिक्चर बनती है, एक विजन बनती है कि मैंने इधर पहुंचना है, मैंने ये चीज अचीव करनी है, और जब मैं मर के उठूंगा तो there is going to be a majlis of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he's going to be calling different people for different eras. He's going to call us from the same era. You and I are the same era, right? You guys are physically there. I'm physically there with you. So we're in the same time. और इस वक्त की प्रॉब्लम को Prophet sallallahu alaihi wasallam ने जाके वहां पे पूछना है हमसे, और उन्होंने पूछना है तुम किस वक्त के हो, and we're going to be like, sir, we are from the 2024 era, and then he's going to straight up ask us कि उस वक्त का ये मसला किसने हल किया था, and some lucky guy will be named at that time. Someone's going to shout out some name, maybe Elise, maybe Salar, maybe whoever, कि इस मौके पे ये वाला मसला इसने हल किया था 2034 में. Imagine that sound of those, that somebody calling your name in front of the Prophet ﷺ. After we wake up on that day, and he will be actually assessing and sorting out people. Unless you can imagine that day, that vision, you cannot know your purpose. You need to see what he's going to ask from the regular people that will be sitting in front of him that day. कि अच्छा इस टाइम से आए हो तुम, इस टाइम का ये वाला मसला किसने हल किया था जी, इसने हल किया था. We have to be looking at the problems and of our own time, or the time coming right in front of us, right after us. And unless we can see those problems, we will never be able to set the purpose, because our purpose is to solve problems. We're Muslims, we're problem solvers. There are only two kinds of people in this world, one with grit, one with not. So whoever you're going to see who's going to achieve any goals are those people who will have that grit, who will have this attribute. Okay, इतनी स्टडी हुई भी है इसके ऊपर, इतनी स्टडी हुई भी है कि ये ग्रिट कहाँ से आती है, क्योंकि जिसके पास ग्रिट आती है उसके पास गोल मिल जाता है. जिसके पास ग्रिट आई है उसके पास गोल मिल गया उसको. तो इसका मतलब ये था कि whoever gets the sense of goal and purpose, उसको ग्रिट मिल जानी है. So grit is generated by your purpose. It was that simple. People were not looking at it from this angle. So we were Muslims. We already had a purpose. So if we can somehow craft the reality of the purpose in our minds, we will naturally develop the grit. इतनी बड़ी चीज होती है पर्पस. अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो फिर एक ऐसी जिंदगी में आप चले जाते हैं जिसमें कोई भी बंदा कहीं पे भी आपको किसी भी देर के लिए, कितनी भी देर के लिए आपका वक्त भी ज़ाया करेगा, ले जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आप क्यों हैं वहाँ पे. और आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक दरख्त से दूसरे दरख्त, एक जंगल से दूसरे जंगल सफर करते रहेंगे, और जब तक आपको रियलाइज होगा कि मेरा नेचुरल डिजाइन जो है, द वे अल्लाह अज़्ज़ा व जल हैज क्रिएटेड मी, जो मेरे बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, जितने भी सारे के सारे कैटेगरीज में से मैं गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, उन सब के अंदर से यही आवाज़ आ रही थी कि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा. मैं कहीं बोर हो रहा हूँ, या मैं कहीं तकलीफ में आ रहा हूँ, कहीं थक रहा हूँ, कहीं मैं कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूँ, कहीं पे मैं अपनी जो है ना उस मुश्किल को डील करने की एनर्जी जनरेट नहीं कर सक रहा हूँ. ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होगा कि आपको यही नहीं पता कि आप क्यों इस दुनिया में आए हुए हैं, क्यों इस वक्त पे आए हुए हैं, और आपके जनरल पर्पस सेटिंग के अंदर क्या क्या मसले हैं. सो इतनी बड़ी चीज़ है पर्पस. थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, थ्रू साइंस, थ्रू फेथ, थ्रू लॉजिक, थ्रू ऑल ऑफ द इवेंट्स, वो लेंस पे आप पूरी दुनिया को उस लेंस पहन के जब देखेंगे तो आपको वो मतलब बता देता. हर इवेंट, हर बंदा, हर मौका आपको एक पीस ऑफ द पजल की तरह मिलेगा. और जब आपको पीस ऑफ द पजल आपको नजर आएगा, जब पजल का पूरा ग्रिड लाइन नजर आएगी, तो हर पीस की वैल्यू पता चलेगी, हर इवेंट की, हर इंसान की, हर बड़े की, हर दाना शख्स की. और सबसे बड़ी बात, आपको उन नाकारा लोगों की पहचान हो जाएगी जो सिर्फ आप पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं. वो नाकारा इवेंट्स भी जिनके ऊपर आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं थी.